Hello to all my dear students of class 5th. Today I want to discuss with you chapter number 21, United Nations. So earlier I have also told you students that this chapter is very important, okay, for your annual examination. So all you need to is hear the lecture very well, okay, because this lecture will only let you really remember all the points, and then you can answer the questions and as well as the exercises. So let's explore what's the in the chapter. Why was the United Nations formed? United Nations क्या है और ये क्यों फॉर्म हुआ? What are the objectives of United Nations? हम पढ़ेंगे क्या objectives हैं. What are the achievements? What are the India's contributions to the United Nations? Okay. So let's study the introduction. Okay. The present day world which we see now has come out of the clouds of devastating circumstances such as wars of mass destruction or world wars, and the Cold War or the pseudo wars lasting for almost 7 decades. Students, 7 decades में एक decade में 10 years होते हैं, तो 7 decades में 70 years हो गए. तो आज का जो युग है, आज का जो दिन है, हम उस घनघोर बादल से होके आ गए हैं जिस बादलों में लोग देश देश पर चढ़ाई करते थे और जिन बादलों से हम हमेशा खतरे से घिरे रहते थे कि ये देश हम पर चढ़ाई करके हमें ख़त्म करेगा और हमें भी उनसे लड़ना है. तो बहुत ज़्यादा लड़ाई और डिस्ट्रक्शन, तबाही वर्ल्ड वॉर्स में हुई हैं, है ना. बहुत सारे कोल्ड वॉर भी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो पिछले 7 decades में लगातार वॉर्स पे वॉर्स हुए हैं. ओके, so 70 years has been the lasting for almost the destruction of the world. Okay, so the greed of the developed industrialist nations and their hunger for gaining more and more markets led to cutthroat competition between the developed European countries like Britain, Germany, France, Italy, etc. तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में हुई कि उनके लालच के वजह से कि वो और इंडस्ट्रियलाइज होना चाहते हैं और बेहतर होना चाहते हैं, तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में ही ये आपस में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा था. और उसी के वजह से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब देश मिलके आपस में ही लड़ने लगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि इनको सबसे पहले मार्केट को मीन्स फॉर वेल्थ and everything they needed to cover up. Okay, they needed to occupy all the markets in their own. So that is why they did not used to share, but they used to fight. Okay, that's not humanity nature, that's devil's nature. Okay, so this started a race to produce more and more colonies. तो इसी ने बहुत सारे कॉलोनाइजेशन को स्टार्ट किया, मतलब जहाँ लोग नहीं रहते थे वहाँ पर भी रहने लगे और कॉलोनाइज होने लगे और वहाँ पे घर बसाने लगे. आप देख सकते हैं इस इमेज में वर्ल्ड वॉर एंड द हिरोशिमा नागासाकी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. तो आप देख सकते हैं जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत फेमस है वर्ल्ड वॉर का, हिरोशिमा नागासाकी का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स इनॉग्रेट होना और एक दूसरे देश पर ये बॉम्ब्स को फेंका जाना, है ना, यूजिंग मैनी जेट प्लेन्स एंड airplanes. Okay, so this was a total distraction time for all the world people because people were dying. Okay, so next we have, so they wanted colonies for procuring cheap raw materials for their industries and as markets for selling their industrial goods. तो वो मार्केट में जो कच्चा माल है उसको ख़रीदना भी चाहते थे, प्रोक्योर करना चाहते थे, और मार्केट भी अपनी अच्छी बनाकर वो इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे. ओके, और भी ग्रोथ करना चाहते थे अपनी. दे ऑल स्टार्टेड वॉर बिटवीन नेशन. तो इसी चीज़ ने दिस ऑल स्टार्टेड वॉर बिटवीन नेशंस. तो इसी चीज़ ने स्टूडेंट्स बहुत सारी लड़ाई झगड़ों को शुरू किया. So gradually these nations formed alliances for protecting their vested interests and the wars took the ugly shape of world wars. Okay, तो ये सब
स्टूडेंट्स होता था कि ये नेशंस अलायंसेस तो करते थे कि हम सिक्योरिटी लेते हैं कि मैं आपको इतना दे रहा हूँ तो मेरी सिक्योरिटी इतने की होगी, ठीक है। लेन देन में भी वो इंटेलिजेंस और बुद्धिमानी दिखाते थे। लेकिन फिर उसके बाद when everything started being more productive, then it started being turning in the shape of world wars. Okay, so छोटी छोटी लड़ाइयाँ फिर मिलके एक साथ जब होने लगी तो बड़ी हो गई, तो that only covered up as a world war. The world has seen extreme devastation in the form of First World War, rendering more than 9 million people dead. 9 लाख लोग मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। द वर्ल्ड हैड नॉट फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द डिवास्टेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो पहले ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से तो अभी तक लोग बाहर नहीं आए थे, पूरी दुनिया बाहर नहीं आई थी कि उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 45 से 60 मिलियन करीब एक करोड़ लोग मरते गए, है ना। दोनों वर्ल्ड वॉर मिलाकर अगर हम देखेंगे तो करीब करीब 1 करोड़ 1 बिलियन पीपल died, they lost their property and life. So this was a very bad thing. 1 lakh people, 1 crore people are so many people. Okay, so if they are losing their life and property, so there was a big need to maintain peace and decorum in the world. Okay, दुनिया में अमन और शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती। सो देन व्हाट हैपेंड, दिस वॉर मेड द वर्ल्ड विटनेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम बॉम्ब्स एंड लेफ्ट द होल वर्ल्ड स्टन्ड। एटम बॉम्ब्स बने तो ये दुनिया ने सोचा ये क्या हो गया, व्हाट हैज़ हैपेंड टू दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज किलिंग ईच अदर, सब लोग एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। 2 प्रॉस्परस सिटीज़ ऑफ जापान, नेमली हिरोशिमा एंड नागासाकी, वर completely decimated by the atom bombs. पूरी तरीके से त्रस्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे। Not only were the people living in the cities killed instantly, but both the cities were rendered inhabitable for decades to come due to the radioactive exposure. Students, radioactive waste और radioactive उसके बारे में मैंने आपको बताया है। जब एटम बॉम्ब स्टूडेंट्स हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे तो बहुत 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 साल लगे वहाँ पे फिर से लोगों को इनहेबिटेट होने में, तो वहाँ से हैबिटेशन ख़त्म हो गई थी, लोग वहाँ से रहना बंद कर दिए थे। बहुत सालों के बाद वहाँ पे फिर से रहने लगे और अभी भी वहाँ पे बहुत सारे ट्रेसेस पाए जाते हैं। द लीग ऑफ नेशंस वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन द ईयर 1919। तो सबसे पहले यूएन से पहले लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुआ था स्टूडेंट्स 1990 में, टू रिस्टोर वर्ल्ड पीस, दुनिया की अमन शांति के लिए, एंड टू स्टॉप एनी फ्यूचर वॉर्स, तो आगे दुनिया में कभी कोई फ्यूचर वॉर्स, वर्ल्ड वॉर ना हो या कोई वॉर ना हो, इसके लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड, सो इट वॉज अ वीक ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, मोटिव तो अच्छा था पर ये वीक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कि कोई नो रियल पावर्स वेस्टेड इन इट, रियल पावर्स वेस्टेड नहीं थी इसमें, ठीक है। एंड हैंस इट वाज नॉट एबल टू स्टॉप द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट इन 1939। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में स्टार्ट हुई उसको भी स्टॉप नहीं कर सकी, ठीक है। नाउ वी हैव फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ तो लीग ऑफ नेशंस अनसक्सेसफुल रहा, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप लिया गया तो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ। द मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी after the Second World War led the world to seriously think about the repercussions of these wars. Okay, तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसने बहुत सारे लोगों को पूरी दुनिया भर में सोचने पे मजबूर किया कि ये इन लड़ाइयों का नतीजा क्या हो रहा है। Hence, a stronger and powerful world organization was envisaged by many countries of the world, leading to the formation of the United Nations Organization. So, और उससे स्ट्रॉन्गर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेट हुई, इनविसेस्ड हुई,
जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ओके. Then on 24 October 1945, 51 countries came forward to sign the UN Charter, giving birth to the UNO in San Francisco, USA. तो UNO सैन फ्रांसिस्को USA में स्टूडेंट्स ये स्टार्ट हुआ ओके इन 1945 24 अक्टूबर, जिसमें 51 कंट्रीज़ ने UN चार्टर के लिए साइन किया, मींस यूनाइटेड नेशंस में पार्टिसिपेट किया. ओके. सो द डे इज स्टिल ऑब्जर्व्ड एज द यूनाइटेड नेशंस डे एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है हर साल. ओके. सो इंडिया जॉइन द यूनाइटेड नेशंस. इंडिया ने ज्वाइन किया UN में 30 अक्टूबर 1945 को. ओके. मीन्स आफ्टर 6 days. ओके. 6 days 6 दिन के बाद जब ओपनिंग हुई तो 1945 में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया. टुडे 193 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ द UNO. आज 193 कंट्रीज UNO का पार्ट है. अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे. ओके. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. The UN is a premier organization working towards the maintenance of world peace. Okay. The first one is कि अमन शांति के लिए ये यूनाइटेड नेशंस इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करता है. ओके. सेकेंड इज इट एम्स टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग वेरियस नेशंस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स pertaining to the international laws. Okay. It has got so students यूनाइटेड नेशंस में यही मेन चीज़ है कि जो भी रिलेशंस हैं स्टूडेंट्स देश के प्राइम मिनिस्टर्स में, प्रेसिडेंट में, उसको मेंटेन रखें. ओके. गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखें और एक फ्रेंडली रिलेशन पूरे वर्ल्ड के सब लोगों में बना के रखें. ओके. जिनमें कि इंटरनेशनल लॉज के साथ इनको सबको फॉलो करना है. ओके. सो द UN ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स and discords between nations through dialogues and discussions. तो dialogues and discussions से problem solve होती है और discuss करके we come out with the various other development projects. Okay. So next is it promotes the principle of human rights and fundamental rights of all individuals. तो ये भी जैसे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ही है कि लाइकवाइज ही ये ह्यूमन के राइट्स को फॉलो करती है. ओके. ह्यूमन राइट्स स्टूडेंट्स दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ पर्सन नीड्स टू बी इंडिविजुअल एंड हैज हिज ओन सर्टेन विल टू डू थिंग्स. ओके. सो ही इज़ नॉट इन स्लेवरी. सो every country today is free because of United Nations only. So it promotes the principle of of human rights and fundamental rights of all the individuals. Next is it works towards solving the economic, social and humanitarian problems in various countries. ये आर्थिक समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को भी और एक मानवीय समस्याओं को भी ये बहुत सारे देशों में ये इसको वर्क करता है इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए. तो any problem related to economic, if a country is very poor, so there are many projects on which they work to provide for the country. Okay. Provide for certain thing. So it is a very big organization, international and very benefit for all the world people. So next is it works for the betterment of civil rights and liberties of all citizens of the world. ठीक है. सारे नागरिकता के अधिकार के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए ये वर्क करती है और हर एक को लिबर्टी है स्टूडेंट्स कि वो एज अ सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वो कहीं भी जा सकते हैं. ओके. एंड देन द UN प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन रिस्टोरिंग द वर्ल्ड ऑर्डर. वर्ल्ड के ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए बहुत ही वाइटल रोल, बहुत ही एक्टिव रोल स्टूडेंट्स UN प्ले करता है. It has been playing an active role in providing technical and scientific assistance to the needy countries. तो हमेशा से स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक एरिया में
डेवलपमेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस आगे रहता है। सपोज चाइना इज़ मेकिंग सम रोबोट, ओके, दैट रोबोट कैन हेल्प इन समथिंग। तो ये जो कंट्रीज़ बहुत पुअर है, जिनको टेक्नोलॉजी में अपडेशन नहीं है या वो कवर अप नहीं कर सकती, तो यूनाइटेड नेशंस हेल्प्स ऑल दोज पीपल to come out and expertise themselves. Okay, so the resources and expertise of the UN are quite extensive because it acts as a pool of expertise and shares it across the world. ठीक है, तो ये एक दूसरे के लिए बहुत ही उन्नति का कारण होते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो है क्राइटेरियाज और डेवलपमेंट को लेकर आते हैं। The UN does not have any particular army or country of its own. तो यूनाइटेड नेशंस कोई एक अपने में कोई कंट्री नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में रन करती है, ठीक है, और इसकी कोई आर्मी भी नहीं है, ओके, बट इट हैज़ द अथॉरिटी टू आस्क फॉर द आर्मी और एनी हेल्प फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज वेन एवर रिक्वायर्ड फॉर रिस्टोरिंग पीस। जब भी कभी अमन शांति के लिए इनको काम करना होता है तो ये आर्मी के लिए दूसरे कंट्रीज से हेल्प मांग सकती हैं और ये हेल्प करना उनको पड़ता है। ओके, सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द impoverished and underdeveloped वर्ल्ड थ्रू इट्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये काम करता है कि ये जो वीक हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो they are trying to benefit themselves in many ways, they help them. Okay, so it try to alleviate poverty in the underdeveloped countries. जैसे मैंने बताया आपको, पॉवर्टी में भी हेल्प करता है, ठीक है, गरीबी जो रेखा के पार हैं, ठीक है, के ऊपर हैं और जो नीचे हैं, उन सब की उसके बैलेंस को मेंटेन करने में वो हेल्प करते हैं। ओके, सो दे फाइंड आउट द सर्वे कि कहाँ पे कितना अनाज है, कितना कहाँ पे ज़रूरत है। सो दे ट्राई टू टेक फ्रॉम अदर कंट्री एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अदर कंट्रीज। ओके, प्रोवाइड्स मेडिकल एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन एड्स वेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, जब भी कभी किसी एड्स की ज़रूरत, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस आया था, सो यूनाइटेड नेशंस दे गेव वॉट एवर दे नीडेड टू give to the world to save the people. Okay, so in every area they are working. Okay, next is the 6 official languages of the UN. UN में 6 languages official languages हैं, and they are English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic. Okay, so next is organs of the UN. Students, UN के organs क्या हैं? जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, मेन 5 सेंस ऑर्गन्स आर देयर, यूनाइटेड नेशंस के भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ओके, आप इससे इसको याद रख सकते हैं। क्या हैं वो ऑर्गन्स का नाम क्या है? तो द UN इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्ट्स लाइक अ काइंड ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट। तो वर्ल्ड पार्लियामेंट के जैसे ये एक्ट करता है। इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल इट्स मेंबर कंट्रीज़। ओके, सारे रिप्रेजेंटेटिव इसके पास हैं अपने मेंबर कंट्रीज से। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN आर एज फॉलोज। तो जो ऑर्गन्स है, मेन क्या क्या ऑर्गन्स हैं? फर्स्ट इज द जनरल असेंबली। ओके, द जनरल असेंबली। सेकेंड वन इज द सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, थर्ड वन इज द सेक्रेटेरिएट। फोर्थ वन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड फिफ्थ वन इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसी के हेडिंग में एक आती है द ट्रू शिप काउंसिल, जो कि इनएक्टिव हो चुकी है। ओके, ये काउंसिल जो है स्टूडेंट्स इनएक्टिव है, और क्या रीज़न से इनएक्टिव है ये मैं आपको आगे बता दूंगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंसीज ऑफ द UN। तो जो एजेंसीज वर्क करती हैं UN के अंडर में, तो सबसे पहले हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उसके बाद एजेंसीज पढ़ेंगे। तो ऑर्गन्स और एजेंसीज में स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इसी के अंदर एक डिफरेंट सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही हेल्प करती हैं और वर्क करती हैं, ठीक है। सब फॉर एग्जांपल एवरीबडी नोज अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन which provides help to the whole world, okay,
सो WHO आप देख सकते हैं, इसका सिंबल ये है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, so you can see easily whatever we are going to study. So we have here organs of the UN, and then we have agencies of the UN. Okay, and then achievements of the UN, and then India's contribution to the UN, and then we are finished with the chapter. So we will study this in detail in the next volume. Okay, we are going to study 3 topics in the next volume, students. So students, thank you. Please see the next video. Okay, thank you.